Hello students, welcome to the class today. How are you all doing? Hope you all are doing fine. So we are going to start with this. We have already started chapter 4, climate. We discussed, we had an introduction in the last class regarding climate, where we talked about the difference between weather and climate. Abhi, the the conditions at some place for a fixed period of time is weather, and then for the other periods it is called as climate. Now, what we are understanding is कि the climatic changes that are happening, the climatic controls that are there, climate, क्योंकि आप ऐसा कैसे हो जाता है that at some places the morning temperature is different from the evening temperature. Got it? The morning and evening temperature differs. The environment conditions differ. Temperature changes. So how are these phenomena happening? इसको समझना बहुत जरूरी है. We have to understand it. So by what process, what are the conditions, what are the techniques, ये सारी चीजें जो है इसको we need to go in detail. Next, what happens is कि we have discussed about some examples also. हम जब बात कर रहे थे, we were talking about temperature, we were talking about weather, we were talking about climate. Then we came to know the major things, the major role that is played by एक दिन में जो climatic changes हो रहे हैं. There is temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. ये सारी चीजें हमने की. Now look at the when we have talked humidity, आपको पता है. Atmospheric pressure you are very well known to, and the climatic controls that are happening. Humidity पता है, atmospheric pressure पता है, wind पता है, precipitation ये जो बारिश होती है ना, how this precipitation happens, इसके बारे में brief outlook I'm just giving you, because when we talk about precipitation, तो आप ये समझो कि how does it happen that rains are heavy, काफी ज्यादा rains होती है मेघालय में. In Meghalaya, the rain is on a very high side. Heavy rainfalls. And how does it happen कि लद्दाख में और राजस्थान में बारिश ही नहीं हो रही है? लद्दाख, okay, and Rajasthan are receiving less rainfall. तो ये रीजन, ये जो कारण है, इसको भी हमको समझना है. हाँ, रेनफॉल वेरिएशंस आर देयर. अभी मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ज्यादातर कंट्री में हमारे यहाँ पे रेनफॉल जो हो रहे हैं, दैट इज फ्रॉम जून टू सितंबर. जून से लेके सितंबर के बीच में द रेनफॉल्स आर हैपनिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. लेकिन कुछ प्लेसेस है लाइक तमिलनाडु में, इन तमिलनाडु द रेन्स आर ऑल थ्रू द ईयर. ज्यादा मतलब कि तमिलनाडु में बारिश हो रही है, लेकिन टाइम वेरिएशन है. होल कंट्री द रेन्स आर हैपनिंग फ्रॉम जून टू सितंबर. सितंबर के बाद से थोड़ी ठंड आने लगती है ना. अभी देखो अक्टूबर नवंबर से, अभी तो वी हैव सच अ नाइस वेदर, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिसंबर. तमिलनाडु में बारिश कब हो रही है? तमिलनाडु में बारिश हो रही है अक्टूबर नवंबर में. वो तो कोई बारिश का सीजन नहीं है, बट इट डज हैपन. इन द सेम वे कोस्टल एरियाज दैट आर देयर,
ठीक है, हम एक हल्का सा यहाँ पे इंडिया का जो डायग्राम बनाएंगे, इंडिया का एक वो बनाएंगे ब्रीफ, बिकॉज मैप को आपको अपने पास रखना है। तो ये जो रीजन है, कोस्टल रीजन, जहां चारों तरफ पानी है, that region is witnessing a very moderate weather all through the year. पूरे साल यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग इक्वल रहता है, यू नो इट, एंड बिलीव मी, आई हैव सीन दिसंबर में वी हैड द वेकेशन, सो वी हैड गॉन टू गोवा, मुंबई गोवा गए थे, एंड वहां पे लोग पंखे चला के सो रहे थे. It was 24-25 degrees Celsius. The temperature was there. So how come it happened कि इधर हम ठिठुर रहे थे, we were with all our woolens on, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं था. तो ये जो temperature variation is happening, how come such a big temperature variation? The living conditions of the people are also affected because of this weather conditions. वेदर कंडीशंस के वजह से लोगों की लाइफ पे बहुत असर पड़ता है. क्या? फूड जो वो खा रहे हैं, कपड़े वो जो पहन रहे हैं. अभी वी आर हैविंग विंटर्स, लुक एट द फूड, सो मेनी गुड थिंग्स आर अवेलेबल. यू नो, नेचर गिव्स अस एवरीथिंग दैट वी नीड. हमको जो भी चाहिए वो नेचर से हमको मिल रहा है. यू वॉन्ट गेट दिस गोभी एंड यू वॉन्ट गेट दिस गाजर. अभी तो साल भर, यू नो, थोड़ा सा मतलब टाइम्स हैव चेंज्ड, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, आपको साल भर सब्जियां हर तरीके की मिलेंगी. बट स्टिल द काइंड ऑफ फूड इनटेक दैट वी हैव इन द मंथ्स ऑफ डिसम्बर एंड जनवरी, द सेम काइंड ऑफ फूड इनटेक कैन यू हैव इन मई एंड जून? नो माय डियर चिल्ड्रन, इट डजंट हैपन. एक चीज और है विच वी नीड टू डिस्कस, एक बार इसको डिस्कस करना चाह रहे थे कि राजस्थान में द हाउसेस दैट आर देयर, ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क दैट हैज बीन डन इन राजस्थान, दे हैव थिक वॉल्स, बड़ी मोटी दीवारें हैं, फ्लैट रूफ्स, छत जो है वो छत मतलब बहुत स्लैंटिंग नहीं है. इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइक मेघालय में जो है आपको छत ऐसी मिलेगी. बारिश हो रही है ना, छत पे पानी जम जाएगा तो घर टूट जाएगा. तो दे नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ स्लैंटिंग रूफ्स इन कंपैरिजन टू राजस्थान. फ्लैट रूफ, थिक वॉल्स, गर्मी बहुत पड़ती है. इट्स एक्सट्रीम वेदर देयर. एंड एक्सट्रीम वेदर, चलो हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर है, तो गर्मी के सीजन में गर्मी पड़ रही है, ठंडी के सीजन में ठंडी पड़ रही है. बट नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड राजस्थान में क्या हो रहा है. द मॉर्निंग टेम्परेचर गोज एज हाई एज 40-45 डिग्री एंड नाइट टेम्परेचर गोज एज लो एज 14-15 डिग्री. रात में कंबल ओढ़ते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं. थिंक अबाउट द पीपल हु आर लिविंग देयर. हाउसेज इन असम आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट, थोड़ा सा ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, हमेशा पानी रहता है ना. अगर नीचे क्या होगा तो सीलन आ जाएगी, पूरे घर में हमेशा सीलन रहेगी. तो दैट्स व्हाई आसाम में एक हल्का सा प्लेटफॉर्म बना के फिर उसके ऊपर घर बनाते हैं. गॉट इट? तो दीज थिंग्स आर देयर, वेरी कॉमन थिंग्स. थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी था. तो अभी ये जो चेंजेस हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट वेदर चेंजेस ऑल थ्रू द ईयर. हाँ, साल भर इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं. तो क्या है वो फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग दीज वेदर चेंजेस? हाउ इज द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैपनिंग? क्लाइमेटिक कंट्रोल में देयर आर 6 मेजर थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस. सबसे पहला आता है लैटिट्यूड. ओके, नंबर 1. नंबर 2 इज, क्योंकि आपको कारण पता होना चाहिए ना. एवरीथिंग हैज गॉट अ रीजन. इट्स एन एरा ऑफ रीजनिंग. जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग फॉर दैट यू कांट बिलीव ऑन इट कि मैम बोल रहे हैं तो ही नो. क्या कारण है? साइंटिफिक रीजंस आर देयर. लैटिट्यूड इज देयर फर्स्ट, देन यू हैव अल्टीट्यूड. Abhi we will be discussing each and every point in detail. Then pressure and wind systems.
pressure and wind systems. Got it? Distance from the sea. Distance from sea. Next, ocean currents. Okay, and last one is relief features. All these phenomena are affecting the climate and climatic controls are definitely to happen. Climatic controls के वजह से ये सारी चीजें चेंज हो रही है. लैटिट्यूड आपको पता है, ये देखो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे. आई हैव ऑलरेडी मेड इट. ये है इक्वेटर एंड दिस इज व्हाट इज द लैटिट्यूड. Latitude plays an important role in the climatic changes. Longitude नहीं. Longitude के थ्रू हम टाइम मेजर करते हैं. We measure time with the help of longitude. The long lines that are there, yeah, these ones. The straight ones, the vertical lines. These are all imaginary lines. देखो, हमको अगर phenomena समझना है, if we need to understand the phenomena, तो ये ऐसा कोई अर्थ में तो बना हुआ नहीं है, but we, for our own explanation, for our own understanding, we have divided it into different zones. अलग अलग जोन में, अलग अलग एरियाज में इसको डिवाइड किया हुआ है. लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र से कितने ऊपर हैं आप, एंड ओशन करेंट्स, एल्टीट्यूड इज देयर, प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स आर देयर. प्रेशर, एयर प्रेशर, आपको प्रेशर कहां पे महसूस होगा, जहां टेम्परेचर लो होता है वहां प्रेशर ज्यादा होता है, और जहां पे टेम्परेचर हाई है, मतलब गर्मी में आप देखो बिल्कुल अलग तरीके का रहता है. You don't have that breathlessness, the kind of breathlessness you have in the hilly areas. Okay, then how far is your place from the sea? क्या हमारे यहाँ पे कितने पास में सी है? Very far off. हम तो बहुत दूर हैं सी से. Got it? हमारे यहाँ पे I mean sea is quite far away. सबसे पास में जो है that is the Bay of Bengal. Yes, वाराणसी के सबसे नजदीक कोलकाता is there. When we go to Kolkata, that is the place where we have the sea, Bay of Bengal. Okay, then the sea that is there, the ocean that is there, Indian Ocean है. Okay, जिसमें कि Arabian Sea है. Indian Ocean is there, Arabian Sea is there towards Gujarat, and then you have the, क्योंकि ओशन करंट्स क्या होता है ना, एक हवा चलती है ना, समुद्र के ऊपर भी हवा चल रही है, समुद्र के ऊपर एक अलग तरीके की हवा चल रही है, एंड यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ विंड सिस्टम ऑन द लैंड. तो व्हेन दिस लैंड एंड द सी एयर मीट्स, क्लाइमेटिक चेंजेस हैपन. हाँ, आगे अभी डिटेल में और वी विल बी डिस्कसिंग. प्लीज अंडरस्टैंड क्या होता है. अर्थ इज कर्व्ड, ये आप देख रहे हो कर्वेचर, ये देख रहे हो ना, इट इज राउंड ना. एक्चुअली इट इज नॉट राउंड, पूरा राउंड तो नहीं है, लेकिन इट इज इन सर्कुलर फॉर्म ओनली. तो ये जो कर्व्स है ना अर्थ के, ये जो कर्व्स हैं, कर्व्स यू अंडरस्टैंड ना, दीज, हाँ, जो मुड़ा हुआ जो एरिया है, इसकी वजह से ऑल द मेजर चेंजेस आर हैपनिंग. एयर टेम्परेचर क्या होता है, जनरली इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. टेम्परेचर क्या है, अभी इक्वेटर पे तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, आपको पता है, यू नो इट वेरी वेल, यू हैव गिवन द, आई मीन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, highest temperature is there at equator because sun's rays are falling on the equator directly. Because of this direct sun rays,
maximum temperature is witnessed at this place. Okay, and from the surface of the earth, अभी air temperature क्या है, decreases from the equator towards the pole. Solar energy सबसे ज्यादा equator पे है, that has an impact on climate. पोल्स पे बिल्कुल भी सन नहीं है, तो 12 महीने -डिग्री में, माइनस में टेम्परेचर रहता है. हायर एल्टीट्यूड्स में व्हेन वी गो टुवर्ड्स द एल्टीट्यूड, हाइट बढ़ती चली जाती है, एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस. ठीक है, ये जो हमारा द वेदर कंडीशंस दैट आर देयर, द एयर कंडीशंस दैट आर देयर, बहुत घना नहीं होता, इट इज नॉट वेरी डेंस, एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस. पहाड़ों में चढ़ते हो तो देखते हो you when you climb the mountains you see breathlessness is there. Why this kind of a breathlessness is there? Got it? Then hills are therefore cooler during the summers. Altitude के वजह से summers में भी आपको hilly region में जो है वो ठंडी ही महसूस होगी. One reason. इसके बाद you have the pressure and the wind system of any area. किसी भी जगह पे कितना प्रेशर होगा, किस तरह का विंड सिस्टम होगा, इट डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. किस लैटिट्यूड में इट इज लाइंग एंड एट व्हाट ऑल्टीट्यूड इट इज देयर. एटमॉस्फेयर, क्योंकि प्रेशर जो है एयर प्रेशर दैट इज देयर हमारे ऊपर में, अभी यहाँ पे आई एम टॉकिंग बट देयर इज सम एयर अबव ना. हाउ मच प्रेशर इज इट हैपनिंग, और कितना प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस एयर प्रेशर. एवरीवेयर एयर इज देयर, एयर के बिना हम ब्रीथ कैसे करेंगे. ओके, सो टेम्परेचर इज देयर, टेम्परेचर वेरिएशन हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, विंड प्रेशर एंड विंड सिस्टम. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड सिस्टम होता है एक्चुअली. देन सी के वजह से देयर इज अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट. क्लाइमेटिक कंडीशंस पे बहुत असर पड़ता है, समुद्र का बहुत असर पड़ता है. पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, हद से ज्यादा आपको जो वेदर कंडीशंस आर देयर, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स यू विटनेस, इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हाउ फार यू आर फ्रॉम द सी. That's why I told you just now, we were discussing, we are very far from the sea, so we do not have a moderate climate. Our climatic conditions here are extreme. Moderate climatic conditions are only at the places which are very near to the sea. Got it? So extreme because condition, these kind of conditions that are existing, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, it is continentality. Distance from the sea में one word that you need to remember is continentality. मतलब continents पे भी इसका असर पड़ता है. All these weather conditions that are there, continentality, that means it is hot during the summers and cold during the winters. Very hot. These condition, continentality का मतलब समझना, 1 mark के लिए it's a very frequently asked question, that is, I'll write it separately यहाँ पे. ठीक है, continentality is hot during summer and cold during winter. Got it? This continentality again is important to know. You should know. जैसे the places which are near the sea, they are these conditions. आप जैसे जैसे दूर जाते हो उसके वजह से आपके टेम्परेचर में असर हो रहा है, टेम्परेचर में डिफरेंस आने लगता है. And the places which are near the sea, वहां पे टेम्परेचर डिफरेंसेस आर हार्डली विटनेस्ड. मुश्किल से, मतलब कुछ आपको ऐसा डिफरेंस पता
नहीं चलेगा. ओके, एक तो ये हो गया. दूसरा, द नेक्स्ट वन दैट इज इंपॉर्टेंट इज ओशन करंट्स. Ocean currents that are there. The places which are near the sea, near the ocean, okay, ये जो winds that are flowing, that are blowing from the sea to the land and land to the sea, that is affecting the climate of the coastal areas. जैसे any coastal area, कोई भी समुद्र के पास का जो जगह है, they have that those places are affected because of warm and the cold currents. Warm ocean currents are coming from the equator and cold ocean currents are there that are flowing towards from the polar side. poles में बिल्कुल ठंड है ना, it's all freezed there. तो वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सेपरेट, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट. गॉट इट. इसके बाद द वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रिलीफ. रिलीफ फीचर्स लाइक क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कितना वहां किस तरह का क्लाइमेट है वो असर पड़ता है बिकॉज ऑफ द लैंड कंडीशंस. माउंटेन्स है, got it, high mountains are there, तो cold, it is barrier for cold or hot winds. पहाड़ रोक लेते हैं ना, हवा जब चलती है तो अगर बड़ी बड़े पहाड़ बीच में है तो how will it control, how will it blow, how will the wind blow? Those conditions are separate, those conditions are different. And यहाँ पे there is also precipitation. अगर they are high enough, काफी ऊंचाई पे हैं, and rain bearing winds are there, हवा आ रही है, उसके साथ कुछ क्लाउड्स भी आ रहे हैं. ठीक है, बादल आ रहा है, हवा के साथ आ रहा है, बादल में there is बारिश. rains are likely to happen because of this cloud. लेकिन पहाड़ आ गया तो cloud when it is hitting the mountain, ठीक है, अभी mountain is there, and cloud is coming. ठीक है, precipitation is there. Now when it is hitting the mountains, it is likely to rain. So rain bearing winds that are carried, it happens in the leeward side of mountains that remains relatively dry. The leeward side of mountains remains dry and the windward side receives all the rain. ठीक है, जो the side which is receiving the rainfall, जिस तरफ से clouds are coming and more rains are there, जहां बादल से टकरा के बारिश हो गई, तो on one side there is lot of बारिश, on the other side बिल्कुल बारिश नहीं हुई है. Okay, heavy rains and less rains because of the relief features. Extreme weathers and less extreme weathers are also because of relief features. Okay, detail में we will be discussing. Now, the first one that we were talking about was about the latitude. We need to understand about the latitude. How these latitudinal conditions are affecting the climate in India. हमारा latitudinal location क्या है? What is the latitudinal location of India? Okay, we need to understand. So first one is latitude. Got it? India is lying here. ये यहाँ पे. This is the location of India. First chapter में हमने पढ़ा था. I had already discussed about this. Tropic of Cancer is passing through the middle of the country. बिल्कुल बीच में से, ठीक है, Tropic of Cancer is passing. ओके, कहां से? बिल्कुल एकदम बेड में से. ये जो हमारा इंडिया का मैप है, यहां पे एकदम बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग. TOC, आई हैव रिटन शॉर्ट फॉर्म. एंड कहां से?
You need to, this is GK. From, ये कच्छ है, कच्छ region, from Rann of Kutch to Mizoram. Got it? To west, east में Rann of Kutch in the east to Mizoram in the west. Got it? These are the climatic conditions that we are witnessing. Lying to the and almost half of the country, half of the country is south of Tropic of Cancer. ये देख रहे हो हमारी half of the country is below Tropic of Cancer and half country is above Tropic of Cancer. ठीक है, आधी कंट्री जो है वो इक्वेटर के पास है, ये देख रहे हो इक्वेटर, वी आर वेरी नियर टू द इक्वेटर, एंड all the remaining area north lies in the subtropical region. Tropic region से जब हम ऊपर जा रहे हैं ना, तो that region is called as the subtropical region. Got it? तो India's climate, the climatic condition, हमारे जो climatic conditions are, ठीक है, if you understand that half of the country is in south of Tropic of Cancer and half in subtropical region. तो हमारा climatic conditions जो है half, आधा we are witnessing the tropical kind of a climate and half places में we are witnessing the subtropical kind of a climate. Got it? 2-3 informations from the book. I'll just show it to you. Got it? So students, just now I told you that I needed to show you something from the book. You can see what I wanted to show you, the location of India on the globe. This is the globe. You can see the पूरा अर्थ जो है उसको एक प्लेन फॉर्म में, एक प्लेन प्लेटफॉर्म पे दिखाया गया है, जहाँ पे कि it is shown in a very different manner. You can see the location of India here. Now when you see the location of India, this is 0. यहाँ पे आपको 0 नजर आएगा, ये देखो इक्वेटर. तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, what I wanted to show you that we are very near to the equator in the southern region. ये साउथ का जो एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे we are very very close. Got it? और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे फ्रॉम द मिडल, इसके ठीक ऊपर में, बिकॉज दिस इज द इक्वेटर, ये 0 अगर यहाँ पे है तो हियर वी हैव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग, ये यहाँ पे मिडल ऑफ, एकदम बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो मैंने अभी आपको लिखा था TOC. गॉट इट चिल्ड्रन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज हियर. एक बार फिर से बताती हूँ. जस्ट सी फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ टू द मिजोरम, ये जो लाइन है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो half of the winters, half of the weather conditions are affected because of the air that is coming from this side, and half of the thing is because of the location very near to the equator. Wind conditions and ocean currents, अभी we will be talking about that. किधर से कौन सी हवा चल रही है जिसके वजह से so much of things, so many things are affected. Got it? एक बारी इसको आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा. Another thing that I wanted to show you is this. Got it? ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको जो मैं बता रही थी. सो लोकेशन इज अकॉर्डिंग टू द डिग्री, जो हम कहते हैं ना 24 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, ये जो है
इट इज, ये मिजोरम इज हियर, आप देख लो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड शुरू कहाँ से हुआ है, इंडिया का जो लोकेशन है, दिस इज द रन ऑफ कच्छ। सो फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ, ये है आर ऑफ, रन ऑफ कच्छ, ROK। गॉट इट। बस यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। आई वॉन्टेड टू शो यू द लोकेशन and the places where India is situated, how it is affecting the climatic conditions of India. We will be discussing about it in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.